अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, शो के आगाज़ में चलते हैं इंतहाई जाली और थर्ड क्लास आमिलों के आस्थाने पर। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ ਬੱਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। अच्छा ये बताओ, ये कुर्सी क्यों पड़ी है? ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਕੋ ਪੜੀ ਹੈ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਖਪੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਮਿੰਟ क्यों? ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਾਰਜਮਾਨ ਹੋ ਲੱਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਰਾਜ क्या होने अच्छा, लगा? क्या बाजमान होने लगा। ਇਹ ਥੱਥੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਬਰਾਜਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜਤ ਮੰਨਦੇ ਨਾ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡਡਡਡਨ 45000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ क्यों ऐसा क्या आपके हाथ आ गया? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਔਰ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਕੋ 2 ਨੰਬਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ अच्छा, और कौन सी? ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸ 24 ਕੈਰਟ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਤਾਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬੇ ਵੰਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? बाबे वंगा क्या होता बाबा है? वंगा क्या? वो जो बल्गारिया की थी? ਹਾਂਜੀ बाबा वांगा नाम है उनका। बाबा वांगा। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਡਡਡਡਨ ਵੰਗਾ ਪਾਵੈਂਦੀਆਂ ਕੰਗਣ ਪਾਵੈਂਦੀਆਂ ਉੱਤਾਂ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਵੰਗਾ ਪਾਵੈਂਦੀਆਂ ਕੰਗਣ ਪਾਵੈਂਦੀਆਂ ਉੱਤਾਂ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਬਾ ਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਉਡਵਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ये बताइए कि बाबा वांगा का तस्करा क्यों किया आपने? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮੌਸਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਦੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਵੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਖ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਉਤੋਂ ਨੀਲੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਐਡੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਟ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ। देखो अब पूरा आ गया कि नहीं? ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੋਲਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाज जिद्दें अच्छी होती हैं, लगाते रहना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ सत्यानाश उसने किया है? ਯਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਵੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ? किधर छोटा खा रहा है बेचारा वो तो। हाय हाय वो तो बेचारा खाता ही कुछ नहीं, उसको तो मिलता ही कोई नहीं। वो तो क्या ऐसा ही नहीं है? उस बेचारे को क्या मिलता है वहां पर? और तुमने प्रॉपर कंबल तक नहीं उसे दे रखा था। वो तो अब हालात कुछ थोड़े से बेहतर हुए मुज़ाकरात की वजह से। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜੇਲਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। बड़ा खुशकिस्मत है वो जेलर जिसको वो बॉलिंग करवा रहा है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ बहुत खुशबख्त है वो जेल जिसमें वो रह रहा है। बहुत बदनसीब है वो कौम जो उससे इस्तेफादा नहीं कर रही। ਬੋਲ ਸਾਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰ ਬਹਿਸ ਕਦੀ ਕਸਬੇ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਵਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत बदनसीब है वो कौम जिसने कदर नहीं की, बाकी का पैरा कल लिखूंगा। उसकी कदर बहुत सौ ने की है, लेकिन वो जो कमा हक्को ਹਾਏ जो वो डिजर्व करता था ना, वो ताहाल नहीं हुई। तो अल्लाह बनाता है इज्जत। अल्लाह ने तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद इमरान खान को इज्जत बख्शी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी, किए। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ये मोहब्बत का तावीज़ होता है। अल्लाह ताला जिससे खुश होता है ना, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है, अकीदत डाल देता है, प्यार डाल देता है। खान के लिए कोई बड़ा बदनसीब होगा जिसको प्यार ना आता हो। ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚਿੜੀ ਭਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਡ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਕ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। किसको? ਓਏ ਬੰਗੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈ। नहीं, क्या आपने वंगा वंगा लगाया हुआ है? ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਗਾਰੀਆ ਵਾਲੀ। बल्गारिया वो तो औरत थी, बाबा मांगा। ਅੱਛਾ ਉਹ औरत ਸੀ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੀ। बाबा बल्गेरिया में ग्रैंड मदर को कहते हैं, ग्रैनी को कहते हैं। ਦਾਦੀ ਨੂੰ हाँ जी। जैसे रिस्पेक्ट किसी को देते ना वैसे। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮਾਦੀ ਲੈ ਲਈਓ ਦਾਦੀ ਬੁਲਾ ਲਈਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ औरत है कोई? जी वो औरत है और उसको मॉडर्न टाइम्स का नॉस्ट्राडामस कहते हैं। उसकी कई प्रोफेसीज सही साबित हुई हैं। हैरान कुन हद तक उसने स्टालिन की डेथ प्रिडिक्ट की थी कि दिस इज गोइंग टू बी द ईयर, प्रॉब्ली इट वाज 53।
1953 बल्गेरियन थी ना, क्योंकि सोवियत यूनियन के ज़ेर इंसराम थे तो उसकी ज़्यादातर चीज़ें सोवियत यूनियन से मुतालिक, इवन वर्ल्ड वॉर 2 उसने प्रिडिक्ट की थी, फिर 9/11 उसने किया। उसने एक जो ज़्यादा डरावनी चीज़ कर रखी है ना, वो दोनों गलत साबित हुई है। वो क्या सर? एक तो उसने कहा था कि यूरोप जो है वो पेरिश हो जाएगा इन द ईयर 2013 एंड 2016। देखिए साल जो है ना, जब कोई प्रिडिक्शन आती है, प्रोफेसी आती है, तो 10, 12, 15 साल कोई अहमियत नहीं रखते। यूरोप एक्चुअली वाज पेरिश्ड। आज के दौर में जब कहते हैं ना कोई चीज़ बर्बाद होनी हो तो उसको आप कहते हैं कि उसकी मईशत बर्बाद, जिसकी मईशत बर्बाद होगी समझे वो तबाह हो गया। सोवियत यूनियन डिसमेंबर क्यों हुआ था? अपनी मईशत की वजह से। कितनी बड़ी सुपर पावर थी। तो कहते ये हैं, जो इंडिकेटर्स बताते हैं ना माहिरीन, ये सिर्फ वही जानता है जो आज के यूरोप को करीब से देख रहा है। आप जरा गौर तो करें कि फ्रांस के हालात क्या हैं। जूतियों में दाल बट रही है जर्मनी में, इटली किन हालों में है, स्पेन की क्या सूरत हाल है, बर्तानिया। कोविड-19। यस, कोविड-19। वो तो कहते हैं ना कि उसने कहा जी न्यूक्लियर वॉर, ये उसने गलत कहा था। अगर देखा जाए तो डिजास्टर तो है ना, चाहे बायोलॉजिकल है, न्यूक्लियर ना से। और बर्तानिया पे भी उसके असरात है। बर्तानिया बेहतर पता क्यों है? उसके रिजर्व्स बहुत तगड़े रिजर्व्स हैं। और इसमें से शायद बेहतर टर्न अराउंड बर्तानिया कर ले। एक तो मेनलैंड यूरोप नहीं है, दूसरा वो ब्रेग्जिट से निकल चुका है। लेकिन ब्रेग्जिट ने बर्तानिया को अफेक्ट किया है। आप दूर मत जाइए, आज से 5-6 साल पहले ज़रा चेक कीजिए वहाँ पे अपने बरतानवी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कि आप जब एम्बुलेंस कॉल करते थे तो रिजल्ट क्या आता था, आप जब पुलिस को कॉल करते थे तो क्या नताइज बरामद होते। आज तो वो कहते हो भाई हमारा भरम कायम है ना, तो थोड़ी देर के लिए रहने दो, वी आर ट्राइंग टू टर्न अराउंड। अभी हालात बहुत बुरे हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ के मसाइल हैं वहाँ पर। सर ऐसी सूरत हाल में हम वहाँ जा रहे हैं। भाई हम तो उनकी मईशत को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं जितने जो, ये जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, जो टूरिस्ट होते हैं, एक्चुअली वी आर टूरिस्ट। ये टूरिज्म ही का हिस्सा है ना, कि हम शोबिज वाले, मीडिया वाले, कवरेज के लिए जो लोग जाते हैं वो वहाँ जाके फॉरेन करेंसी स्पेंड करते हैं। इन रिटर्न हम बरतानिया को ऐसा पोर्ट्रे करेंगे, ऐसा प्रेजेंट करेंगे, लोग आशीष करेंगे, देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बाबा बेटे। ਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। बस बेटे की तुम दसिए साड़ी ते रोज ही सवेर दी। बैठो बेटे। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੁੜੀਏ? कोई हाल नहीं है, वैसे ही हाल है बुरे। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮਨੂਸ ਨੂੰ। इन्हें मैंने छड़ के बर्बाद होना है हैं? कितना सेटिस जमाना है हैं? आफ्ताब बेटे की हाल है, ठीक ठाक हो? तुम्हें कितनी दफा मना किया मैंने? तुसी अपनी फिल्म में हिस्सा लेना है कि नहीं, या एक कूड़पुना जारी रहेगा हैं? मेरी बात कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि आप फिल्म में मुझे काम देंगे, बताया ही नहीं फिर। मैंने कितनी दफा आपसे कहा है कि आपके हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक इस मनहूस मामे से निजात हासिल नहीं कर लेती। अच्छा 10 सनुकाज करने की नहीं? नहीं, मामा जी आपकी वजह से सारी मनहूसियत फैली है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਨਾਲ जी बेटे। ਉਧਰ ਪਰੇ 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 ਇੱਧਰ ਆ ਬੱਚਾ। जी बाबा जी। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आफ्ताब साहब आपकी फिल्म का शूट कब शुरू हो रहा है? शूट तो शुरू होगा कोई इन अ मंथ और सो। तो बस ठीक है, और क्या चाहिए मुझे? मैंने नहीं कराने आपसे कोई तवीज। बस बेटे 2 टिकट भेज दियो, ਅਸੀਂ पहुंच जाएंगे, रोटी ते ਤੁਹਾਡੀ फिल्म कर देंगे ईमान नाल। मैं आपको 4 टिकटें भेज दूंगा, मेरी जान छोड़ दें। ਵਾਹ ਵਾਹ, 4? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਲ ਆ। तो आप भी आ जाना, ऐसी कौन सी बात। 4 टिकटें? आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, सस्ते से सिनेमा की टिकटें होंगी, ऐसी कौन सी बात। ठीक है जी। पापा बेटे नहीं, हमने फिल्म देखने जाना है कि करने जाना है? और किस चीज की टिकटें भेजूं तुम्हें? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕੀ। मैंने बस आपको बता दिया, आप ना नहीं कर सकते। नो इज नॉट एन ऑप्शन। ओए वाह। ओह वाह वाह। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे करेंगी बिहाइंड द सीन्स। Behind the- बीटीएस आप करेंगी। आप मुझे बीटीएस करने के लिए बुला रहे हैं? नहीं, अब मैं उसके लिए भी नहीं बुला रहा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी बीटीएस, उसमें क्या है? कर ले, मैं कैमरा पे ऑपरेट करूंगा बेटे। अच्छा, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा अगर इसने कैमरे को हाथ भी लगाया। नहीं नहीं, मामा जी पे लानत भेजे, मैं ही आऊंगी, देखिएगा इंशाल्लाह। हाँ बेटे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे भी डाल ले जो। मामा बेटे खामोश रहो। लेकिन मैं पहुंचूंगी किधर? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर?
हाय मेरा तो ड्रीम था मैनचेस्टर जाने का। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। नहीं इस दफा लेकिन मैंने जाके रहना है बस। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ 10 9 8 7 ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੰਜਮ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈਂਜ ਪਾਵਾ ਜੀ। क्या बने हुए थे? इलियास संजम वो कौन है? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਲਿਆ ਸੰਜਮ ਭਾਜੀ ਚਨਿਓਟ ਨੀਲਮ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਟਾਰ ਜੇ पापा जी आपने न्यू ईयर पे क्या किया? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ 5-7 ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ कोई रौनक नहीं, कोई फायरवर्क नहीं, कख नहीं था। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਸਨਾਟਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਸ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ बाबा बेटे मेरे लिए की हुक्म है? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ होए होए वाह वाह बुए खुल जाएंगे। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਏ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੀ 5-5000 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। मैं तो नहीं रख रही, मुझे BTS मिल गया, मैं जा रही हूँ। BTS मेरी मेरी गल सुनो, वांगा आ गया और सारा काम खुल जाएगा। और नहीं मामा बेटी, जी गल कुछ तो नहीं सुनो। होने वाला। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। नहीं आपका बाबा वांगा कब आना है? ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाबा वांगा तो फौत हो चुकी हैं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ हाँ जी बताएं बताएं बताएं। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਪੱਤੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ वो जगह बता दो 50 दिरहम्स ਕਾਦੇ कि वो जगह क्या है जहाँ पे नर्सरियां हैं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ उसका नाम है गेलन फाटक ਓਏ और रेलवे स्टेशन बता दो $100। ਓਏ ਵਟਲਾ ਕੋਸ਼ੋ ਸਾਲੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾਨ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। उसको कहते हैं राजोवाल। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ 100 ਕੁ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 2 ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ। ਲੀ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਵਾੜ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਦਗੜਦਾ ਕਦਿੰਤਾ ਆ ਬਾਬੇ ਵੰਗੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਨਿਊ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਭਾਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਬੰਗੇ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਗੇ ਇਹ ਚਪੜਾ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਐ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ Full moon, blood moon. Good afternoon. ਹੈ Dark shadows on fairy meadows. Huh? Darkened skies. Hi guys. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਗਾ ਇੰਨਾ ਡਰੈਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। Departed soul. ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਵੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वांगा तो मर गई थी, ये किधर से आ गई है? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈ ਏ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा तो क्या इसकी रूह कहाँ से मिली तुम्हें? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਕਸ਼ ਲਵਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ हाँ की बकवास कर रहे हैं। बाबा जी आपने फरमाया था कि 44वां प्रेसिडेंट यूएसए का आखिरी प्रेसिडेंट होगा, तो अब तो 47वां आ गया। एक मिनट। ये क्या? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਲਿਆ हाँ मैं क्या सी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੂੰ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜੀ। फिलहाल तो रुलती नजर नहीं आ रही, बड़ा शानदार काम किया उन्होंने। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗੀ ਉਹ ਸਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ हाँ नहीं फिर अलहदा बात है, फिर वाकई हालात इस कदर बदतर हो जाते कि हैंडल नहीं होना था, कंट्रोल नहीं होना। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਲੈ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦਾ ਅਜ਼ਲੀ ਔਰ ਅਬਦੀ ਹਾਜਤਮੰਦ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਗੁੜ ਖਵਾਤਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। अच्छा जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ। फिर ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਚਵਲਾ ਨੇ। अब क्या हुआ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਿਫਾ ਹੈ ख्वाजा आसिफ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 70 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। फिर ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਉਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੱਢਤੀ। ਉਹ ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो इससे क्या है, वो उसका जाती मामला है। मुझे तो लगता है इस चैनल ने सबोटाज किया एस्टेब्लिशमेंट को। वो क्यों सर? कोई पुराना स्कोर सेटल करना हो सकता है, कोई पुराना बदलाव हो सकता है। देखो ना, किसी और चैनल को ख्याल आया इस बात का? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अरे हाजत बंदा की हाल आ ठीक है बाबा जी। बाबा जी को सलाम करो। जुल जुल बाबे को सलाम कर। शाबाश शाबाश जल्दी। हुण चंगी रहेगी लंगड़ी थी वदी। सलाम अलैकुम बाबा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सलाम वालेकुम बाबा जी। ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? अरे बाबा जी मेरे पैर सड़ गए। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾੜੇ ਨੇ? किन्ने साड़े ने ਇਹ ਤੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ऐसे पीन न लाई जिया जिया सी। बाबा वंगा सच्चा है, बाबा वंगा सच्चा है। मैं रोक्या मैं को भूंडण को ना वंज था। मैं रोकया न भूंडण को ना वांजो था बाबा जी मेरी तो हिक नहीं मने दी रन। है। ए रन ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਨ ਰਨ ਲਾਈ ਏ? ओ साडे पासे रन जाल हुंदी है। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। रन गाल तो नहीं हो, रन का मतलब है औरत। जिया सही आदे पियो सही। बाबा जी ए दसो जो इमरान खान कदा बाहर से? 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ते बाबा जी ये दसो वजह क्या है इतना देर नाल क्यों आसन खान साहब बाहर? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਓਏ ਬੋਏ ਅਗੇ ਓਏ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲੀ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ये कई बार इस तरह नचती नचती बल्गारिया दौड़ गई सी पत्तों की तो। ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਉਹਦੀ तेरा ख्याल ही है, तेरा ख्याल ही है। उधर उधर ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਇਧਰ ਮਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਆਇਓ। ਮੂਡ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖ ਲਓ। क्या करिश्मा? ਚੁੱਪ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਡ ਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। अब तुम सबको नींद आ रही है, जिस तरह ये कौम सो रही है, तुम भी यूं ही सो जाओ, अब तुम सब सो जाओ, अन्नी देव सो भी जाओ। वल तू भी संपे, तू कॉफी पीती खच दी खाचा? नहीं, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 1 ਮਿੰਟ। ਦੇਖਿਆ ਮਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ। ਹੈ ਅਬ ਤੁਮ ਸੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਅਬ ਤੁਮ ਸੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਓਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਓ। ओए अन्नी दियो हुण तक तो शुजाबाद ही टप गई उसे। कुछ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ रात आप जानते हैं कि आजकल सियासी सूरत अहवाल के पेश नज़र हम थोड़ी बहुत संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं, वक्तन फ़वक्तन अपनी ओपिनियन का इजहार भी करते हैं। आज मेरा इरादा तो ये था कि एक इंतहाई अहम और संगीन मौजू, उसके ऊपर मैं हल्की फुल्की गुफ्तगू करता, अपने कालमाना अंदाज में बातचीत करने की कोशिश करता, और उसका मौजू था जावेद अहमद गामदी साहब। जावेद अहमद गामदी साहब एक बहुत बड़े आलिम है, इसमें कोई दो राय है नहीं। जावेद अहमद गामदी साहब की लातादाद बातें कंट्रोवर्शियल भी हैं और लातादाद बातें इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी, और उस पर कभी हम मोतरज़ इसलिए नहीं हुए, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पर जावेद साहब की तालीमात का, और बहुत से उलमा भी उनमें शामिल हैं, उनके बड़े असरात हैं, उनकी बड़ी गहरी छाप है, और मैं जावेद गामदी साहब की दोस्ती, उनके साथ एक ताल्लुक़ पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। हाउएवर जब कोई उनके ऊपर तनकीद सियासी नौयत की करता है, यानी मसलक से हटकर, मजहबी बहस व मुबाहिस से हटकर कोई तनकीद करे और तनकीद में हद से तजावुज़ कर जाए, तो ये मामला मुझ जैसे नातवां तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए
लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है। मैं आज पूरी शद्दोमत के साथ जावेद साहब के मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने टेक्सास उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उस वक्त तक वो सो चुके थे, और मैं बावजूद इसको मौखर कर रहा हूँ कि जब तक मैं उनके साथ ख़ुद गुफ्तगू नहीं करूँगा, एक तरह का इंटरव्यू नहीं उन्हें करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज जब उनसे बात हुई तो इंटरव्यू की गुजारिश करूँगा कि चंद मोटी मोटी बातें, 3-4 सवाल हैं उनकी हालिया स्टेटमेंट से मुतालिक, गो कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को क्लियर भी किया, लेकिन इसी के जवाब, बल्कि जवाब गज़ल के तौर पर मैं जो 1-2 बातें करना चाहता हूँ उनका यकीनन जवाब उनके पास ज़रूर होगा। और ये तरीक़ाकार डायलॉग का, गुफ्तगू का, मकालमे का, इख्तलाफ का, इख्तलाफी नोट का हमने जावेद गामदी साहब ही से सीखा है। तो मुझे यकीन है कि बड़ी खंदा पेशानी के साथ वो मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। फिर मैं एक इदारा है उसके बारे में भी कुछ परेशान हो गया हूँ, कुछ स्केप्टिकल हो गया हूँ, GCIL वो इदारा जिसके साथ जावेद गामदी साहब का एक इनफॉर्मल ताल्लुक़ तो हो सकता है, उसके बोर्ड या किसी ऐसी चीज़ के वो मेंबर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सवाल ज़रूर करूँगा क्योंकि जावेद साहब के दामाद का ताल्लुक़ है इस इदारे के साथ, और उस इदारे से मुताल्लिक़ भी कुछ बातें ऐसी हैं जो जवाब तलब है। चुनांचे इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह या तो हमारी अगली नशस्त जो हमारे शो का संजीदा एक सेगमेंट है उसमें होगी जी। या फिर एक सेपरेट व्लॉग की शक्ल में, इंटरव्यू की शक्ल में मैं जावेद साहब का मौक़िफ़ और अपनी गुजारिशात पेश करूँगा। दूसरी बात जो बड़ी अहम, उसमें ख़बरियत का एक पहलू है, और ख़बर जो मेरे पास है जिस पर मैं बातचीत करना चाहता था वो 1-2 लॉबिंग कंपनियों से मुताल्लिक़ है जो अमेरिका में वाक़े हैं, और बहुत तगड़ी लॉबिंग कंपनी भी है उनमें। एक कम से कम ऐसी है, एक बिल्कुल गुमनाम सी है और दूसरी बराए नाम सी है, तीसरी बल्कि। जो बड़ी नामवर कंपनी है उससे मुबैना तौर पर रब्ता किया गया कि नवाज़ शरीफ साहब के नुमाइंदे, और जैसे कि ख़बरों में मशहूर है कि एहसन इकबाल की तरफ से कोशिश की गई। एहसन इकबाल चूँकि अमेरिका रहे हैं, एक फुटप्रिंट है उनका भी वहाँ पर, और वो उन चंद वज़रा में से हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद वो जो कुछ हैं बेचारे, अल्लाह ताला ने उन्हें एक ख़ास मकाम पे पहुंचा के जामिद कर दिया है, कम से कम उनकी अक्ल को जामिद कर दिया है। मुझे अफसोस होता है उनकी बातें सुनकर, लेकिन लुत्फ़ आता है ख्वाजा आसिफ जैसों की बातें सुनकर। अब लोग पूछ सकते हैं कि जी आपको लुत्फ़ क्यों आता है? लुत्फ़ इसलिए आता है कि हमारा ईमान और पुख्ता होता है और इस बात पर हमारा अकीदा मज़ीद रासिख होता है कि जिसको चाहे खुदा ख़राब करे। ख़बर उसमें यह है कि जब ये डिमांड की गई कि भाई आप हमारे लिए लॉबिंग करें, और ये ताज़ा तरीन है, आज मुझ तक पहुंची है, और ख़बर भी कोई बहुत पुरानी नहीं है क्योंकि इसने सर आज ही उठाया कि आप हमारे लिए लॉबिंग करें, ट्रंप के इंतहाई करीबी लोगों के साथ हमारे राब्ते करवाएं, और वक्त के साथ साथ ट्रंप साहब के भी हमें करीब करने की कोशिश करें। उनकी तरफ से एक ज़र कसीर का मुतालबा किया गया जो कि लॉबिंग कंपनियां करती हैं, वो इस पर थ्राइव करती हैं ऐसी सूरत हाल पर, और ये उनका वसीला रोज़गार भी है, वो रेवेन्यू इसी से इकट्ठा करती हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं, इसी तरह उन्होंने भी एक ठीक ठाक रकम डिमांड की। उन्होंने कहा जी हम इससे भी ज़्यादा देने को तैयार हैं, ऐसी क्या बात है, क्योंकि बकौल इनके अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, और वो इस रिस्क को समझते हैं कि ये अल्लाह का दिया रिस्क है और उजाड़ने के लिए है। लेकिन क्योंकि कारोबारी लोग हैं, बात मशरूत करते हैं, और मशरूत बात यह है कि आप हमें इस चीज़ की गारंटी दें कि ट्रंप के इंतहाई करीबी हलके में से 1 या 2 लोग हमारे हक में वो ऐसी ट्वीट्स करें, हमारी तारीफ में वो 1-2 छोटे मोटे कसीदे ऐसे कहें कि जिसकी बुनियाद पर हम एक बयानिया बिल्ड कर सकें, एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर सकें कि निरा प्रो इमरान तबका ही नहीं है जो ट्रंप को हर वक्त फ्लैंक किए होता है। तो ताहाल उस बड़ी नामवर कंपनी ने इससे माजरत की है,
کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے, ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ کو جب قبول ہو تو جو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے وہ لے کر آ جائیے گا, پھر بیٹھ کر کو بات چیت کریں گے. اب معاملہ ڈول ڈرمز میں ہے اور کافی حد تک اس فرنٹ پر بھی ناکامی نظر آتی ہے ان لوگوں کو. اس حوالے سے آخری بات جو آج کی خبر یہ تھی کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات تو ہوئی گزشتہ روز عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن جو خان صاحب کی باڈی لینگویج ہے وہ علیمہ خان نہیں اس کو ریڈ کرتی, کیونکہ علیمہ خان کو بڑی سیاسی اور بڑی شاطر خاتون نہیں ہے, اس حوالے سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا, اور بھائی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کے تفکرات اور ہیں, ان کی فکریں اور ہیں, ان کے مسائل اور ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اسیس کرنے بیٹھ جائیں کہ میرا بھائی اس وقت پولیٹیکلی کیا سوچ رہا. کیونکہ یہ جو بڑی بہنیں ہیں ان کا سٹیٹس ماں کے برابر ہوتا ہے اور یہی تھرو آؤٹ ان کا معاملہ رہا. لیکن کچھ باخبر لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ خان کی باڈی لینگویج سے دو چیزیں صاف عیاں ہیں, اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ خان اگر مذاکرات کر رہا ہے اور مزید آگے کرنے کی بات کر رہا ہے تو صرف اور صرف اپنی کنڈیشنز پر, وہ کسی کی ڈکٹیشن, کسی کی کنڈیشن کو سنتا تک نہیں, اسے کنسیڈر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اسی معاملے سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ خان کے رویے سے یوں لگتا ہے, اس کے ایک جنرل ایٹیٹیوڈ سے یوں لگتا ہے کہ آپ جتنا اس کو پریشرائز کریں گے یا جتنا پروپیگنڈا باہر کرنے کی کوشش کریں گے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا. چنانچہ یہ بات سراسر مضحکہ خیز ہے کہ خان کو کسی بھی طرح کے پریشر میں لایا جا سکتا ہے, اس کو کسی طرح سے توڑا مروڑا یا پریشان کیا جا سکتا ہے. وہ اس سطح سے بہت اوپر جا چکا ہے, اس کے یہ مسائل ہی نہیں رہے. آپ بڑی دیر سے کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں سر؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی ضرور, میں نے اس لیے گزارش کی ہے, حکم کریں. ٹائم بہت تھوڑا ہے اس لیے انتہائی اختصار سے. بس کھنگ دے سے ہلکا. سر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے تھے میں پیپلز پارٹی نون لیگ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو وہ کون سی مجبوری ہے جو بیٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ بظاہر کوئی مجبوری نہیں سوائے اس کے کہ اتمام حجت ہے. اتمام حجت بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت ہی ریجڈ آدمی ہے, اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے. جو سانپ تم نے نکالنا ہے نکال لو, جو چمتکار تم نے دکھانا ہے دکھا دو. میں بیٹھا ہوں, میں نہیں بیٹھا, وہ لوگ بیٹھے ہیں جو تمہارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ایک بات شاہ زیب صاحب آپ بھی ذہن نشین کر لیں اور ہمارے ویورز بھی, کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سچویشن کو, پولیٹیکل چیکر بورڈ کو کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا دیں, آپ جتنا مرضی اس پر, اس کی پارٹی پر, اس کے عزیز و اقارب پر, اس کے ساتھیوں پر عرصہ حیات مزید تنگ کر دیں. پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا سپرلیٹو لے آئیں, آپ کسی قسم کے ڈائلاگ کو, کسی قسم کی بات کو ایون ٹیبل نہیں کر سکتے جب تک آپ خان سے ریکویسٹ نہیں کریں گے. بھائی پریشر لینا یا مصلحت کوشی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے, اس میں عمران خان کا یا اس کی پارٹی کا ساتھیوں کا کوئی رول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سچویشن ایسی کریٹ کر دی ہے کہ عمران خان اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ ریکویسٹ کے رسپانس میں کر رہا ہے. اس کے بغیر اگر کوئی کچھ سوچتا ہے تو ابس ہے, اپنا بھی وقت ضائع کر رہا ہے, اپنے ساتھیوں کا بھی, اپنے گھر والوں کا بھی. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ بیوی محض اس وجہ سے شوہر کو عدالت لے گئی کہ وہ اس سے زیادہ اپنی پالتو بلی کا خیال رکھتا ہے. یہ جناب کہاں کی خبر ہے؟ سونیا ملتانی کدھر ہے جس کا یہ پیٹ کوسچن ہے؟ سر وہ کہیں کام میں مصروف ہے, ہماری طرح فارغ تھوڑی ہے. واہ 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 واہ, بڑے حقیقت پسند ہو گئے ہیں رنگیلا صاحب. یہ جناب کرناٹک کا واقعہ, کرناٹک, انڈین ساؤتھ. سر وہاں پر کوئی بھی رپورٹ درج کر لیتے ہیں, کہیں بھی ہر کیس آ سکتا ہے. نہیں, عدالت نے بڑی سرزنش کی ہے
कि दिस इज फ्रिवलस लिटिगेशन है ना? वो कहती कि बिल्ली ने मुझे 1-2 दफा पंजे भी मारे हैं, मजाल है इसने कोई एक्शन लिया हो बिल्ली के खिलाफ, और हर वक्त उठते बैठते आते जाते बिल्ली का ख्याल रखता है, उसकी डाइट का ख्याल रखता है, उसकी कोमिंग करता है, उसकी ग्रूमिंग करता है, फिर उसको बाहर भी लेके जाता है, उसका ख्याल रखता है, और मुझे देखता तक नहीं और बेइतनाई का सबूत देता है। बिल्कुल मैं इररिलेवेंट सी होके बैठी होती हूँ। तो ये कंप्लेन अपने हस्बैंड से करे या अपने घर वालों से करे, अदालत ने क्या करके देना है? यही बात अदालत ने की कि बीबी ये हमारा काम नहीं है, आपकी अगर नहीं बनती तो आप उससे तलाक ले लें। इसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इसने कानून शिकनी नहीं की। नहीं सर, एतराज तो 100% जायज है अच्छा, कि भला तुम बिल्ली की जुल्फे गिरागीर के असीर हुए हो। वाह, गिरागीर के असीर, वाह लाला वाह। मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ कि ये फिक्रा तुमने बोल कैसे लिया लाला। सर इस कपल के बच्चे हैं? नहीं, शादी को कितना अर्सा हुआ? थोड़ा। तो सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सीधा साधा सोल्यूशन यही है कि पास कर या बर्दाश्त कर। ਭਾਈ ਨੇ ਹੈਲੋ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? अच्छा, कर्नाटक में इस तरह कैसे बोलते हैं? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। क्यों जलंधर वालों ने निकाल दिया था? ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। अच्छा, आप हैं क्या? ਮੈਂ ਸਾਲਾ, किसको? ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो ये कौन है? नमस्ते बेड़ो। ये वही है। आज शंकर किधर है? अभी तुम्हारा भाई मर गया जवान, मौत मर गया। अबे मरे हमारे दुश्मन, वो दिल्ली गया है। ये कौन है भाई आपके साथ है? मैं तेरी भाभी हूँ। अरे भाभी तू घर से बाहर क्यों? बंदा तेरा घर नहीं है, तू बाहर मटक मटक घूम रही, कल को वो मुझ पे शक करेगा भाई मेरी बीवी किधर है। देखे कैसा घटिया शख्स है, क्या बातें कर रहा है। ये आवाज कहाँ से आई? इधर। ये कौन है भाई? अबे मैं तेरा पड़ोसी हूँ। लख लानत, मेरी शक्ल पे जहां मैं जाता हूँ ये पीछे आ जाता है इसका। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। तुम किसके साथ हो भाई? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अरे कब साला हो गया? मेरी तो शादी नहीं हुई है, साला कहाँ से प्रमाण चढ़ गया 1 मिनट में? तुम अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर रहे हो, पागल हो गए हो? क्या हो गया? दिमाग खराब कर दिया। ये कह रहा मैं तेरी भाभी हूँ, वो कह रहा तेरी बीवी हूँ, तुम कह रहे मैं तुम्हारा साला हूँ। अरे क्या ब्योड़ी पी रखी है आज? ओए तू सारे काम छोड़, पागल के पुत्र, अपनी तरतीब तो ठीक कर ले। बात सुनो, हाँ, ये हर दफा तुम्हारा पड़ोसी क्यों आ जाता है? पूरे मोहल्ले में सर इसके पीछे कोई नहीं आता सिवाय मेरे। भाईजान ये तो आए ना भाई, मेरा साला है ना, इसका तो बनता है। ਇਹ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਲਾ मैं ਆ। तो तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? लानत तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? वो मेरा भाई है तो मेरे साथ ही होगा, तुम मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हो? आराम से बोलो, मेरी अम्मा क्या सोचेगी कि मेरे बेटे के साथ बदतमीजी हो रही इस मोहल्ले में? क्या बकवास कर रहे हो, मैं अम्मा नहीं हूँ। अम्मा को मरे हुए 20 साल हो गए हैं। अम्मा मर गए, अब्बा भी चला गया। अब्बा जिंदा है, गद्दे के बच्चे। ये कब जिंदा हो गया? साला ये तो मर गया था। तुम्हें पता है तुम मुआशरे का वो नासूर हो जो शराब के नशे में अपने रिश्तों की पहचान छोड़ देते। ये कौन होता है साला इतनी लंबी लाइन बोलने वाला? ये कौन है भाई? इतना घटिया शख्स है कि सिवाय अपनी बिल्ली के किसी को नहीं पहचानता। ये बिल्ली कहाँ से आ गई साली बीच में? ਆ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ। ਉਹ ਸਾਲੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? भाई ये यार हर कभी वक्त पीता रहता है। हर वक्त पीता रहता है। या तो उस घर में बिल्ली रहेगी या मैं रहूंगी। बस कर दो, इतना भी जालिम नहीं हूं मैं। आधी रात को कहाँ जाओगी तुम? भाभी जी आप बेफिक्र रहें, मैं आपको मोटरसाइकिल पे छोड़ आऊंगा। ये कौन बोला? तेरा पड़ोसी बोल रहा हूँ मैं। अबे कौन सा पड़ोसी साले, आज तक मैंने तुझे मोहल्ले में नहीं देखा। चुप करके बैठ जा, मैं तुझे नहीं जानता, इसको चुप करवा ले। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਬਣਦਾ। ਅਬ ਤੂੰ ਗੈਂਡਾ ਬਣ ਜਾ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। देखो मेरी बात सुनो, एक बिल्ली की वजह से अपना घर नहीं खराब करते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बिल्ली से करता हूँ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਫਾ नहीं, वैसे मैं वाकई आपसे पूछता हूँ, आप पागल तो नहीं है? ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਸੁੰਘਾਤਾ ਉਹਨੇ। इस चवल के साथ इश्क करती हो? गाली देने का नहीं है बीड़ू, गाली देने का नहीं है, जुबान कली पे रख देगा। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਣਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਟਣਾ। इसको जूते पड़े हो ना दो, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अबे किसको जूते मार रहा है? किसको? तेरी जुर्रत जूते मारेगा तू। आप उनको हाथ लगा के दिखा, मुझे मरवाने के लिए लेके आया। उसने भाई उसने कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं। पता है क्या, इसका साला मुझे अभी बता रहा था कि इसको वाकई
ठीक ठाक जूते पड़े हो ना सुबह शाम, 2 दिन में ये ठीक हो जाए। ये मेरे साले ने कहा तेरी जुर्रत तूने ये कहा, तुमने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, मुझे बता इधर। नहीं क्या तेरी सी जाना तौबा, पागल ने भंग पीती हुंदी। क्या करे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। अबे गुस्सा मुझ पे करेगा, गुस्सा करके दिखा साले, बहन दी है तुमने, मुझ पे गुस्सा करेगा। यार बोले कोई ना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओए एवे ना बोले, हक दी आवाज चुकनी चाहिए। अबे चुप करवा उसको, अबे चुप करवा। अबे पगलाए गए हो क्या? फिर तेरी आवाज आई है, खामोशी से बैठ जा। वो कुत्ते मार पीने वाले घटिया इंसान। ये कुत्ते मार कौन पीता तुम में से? भाभी तुमने क्या काम शुरू कर दिया? अबे क्या बकवास कर रहा है, तेरी बात हो रही है तेरी। कुत्ते मार नहीं पीता भाई, पूरी 600 की लेता हूँ, 5 और 1 6। अगर अब तुमने साले पर हाथ उठाया, ओ भाई नहीं चुकन दिया, अल्लाह दी कसम नहीं चुकन दिया, कोई नहीं होगा। याद ना करा। भाई तुम मेरी लाश भी निकाल दोगे ना तो इसकी जान नहीं चढ़वाएगा भैया। मैं साले 2-2 हाथ क्यों नहीं करते हो इसके साथ? अरे अपने खसम को मरवाएगी, बेवा होना चाह रही है। मैंने एक मारी, इन्हें मर जाना, भैन मेरे ते पै जानी फिर। वाकई तुम्हारे एक हाथ से मर जाए ये, जितना ये बदहैयत सा है। मेरे पास इतना बड़ा खंजर है, इतना बड़ा खंजर, 4 टुकड़े कर दूं साले के, अभी बखेर दूं, कुत्तों को डाल दूं। क्यों जी, बिल्लियां ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत पाਉਂਦਾ है। अजे एक साला इन्हें कुत्ते ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। यार तुम लोग इसको अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। मेरी बात सुने रवि भाई, आप चुप रहे। नहीं वो सही कह रहे हैं, किसी अभी अच्छे डॉक्टर नु दिखाओ। अबे भाई 1500 डॉक्टरों को दिखाया, मैं इसके साथ ही होता हूँ। यार तू आज मुझे बता दे कि गली में किस जगह पे रहता तू, क्लियर कट बता दे। ये गली में नहीं, सीधे हाथ पे मेरा घर है। अरे इस साथ तो नाला है, उधर नाले में रहता किसे कछू कुमे के बच्चे। मेरी बात सुन, पड़ोसी से बना के रख। पड़ोसी साला लगता। नहीं साले ते तू चदरां चढ़ा रहे हैं। अबे दांत क्यों निकाल रहा है? अपनी अपनी गल तो रगीले को हरकत की थी, उन्हें पूछ लाई। अल्लाह दी कसम। एक मिनट है, किस बात पे हंस रहा है? ओ परले ने डिश कीता ही, ओ परले ने। मैं बताता हूँ, अगर तेरे साले ने बात कर ली है तो इसमें क्या हर्ज है? अबे मुझको बात की तो दांतों के नीचे रख देगा ना। मेरी बात सुन, तू मखबूतुल हवास हो गया है। या मकतूबुल हवास? अरे मुझे कोई इंग्लिश में गाली दे रहे, मकतूबुल हवास कह रहे। अच्छा जब तेन इतना प्यार होया, उस टाइम तू ठूए का नशा कीता सी? तू तेन इन्नी होश नहीं रही भैड़िए। ये दिल का बहुत अच्छा है। हैं दिल का अच्छा? हाँ चपेड़ा दिया बहुत कमाल ने। दिल का अच्छा है, हाथों का बहुत सख्त है। मैंने आज तक तेरे पे हाथ उठाया, अब बता मुझे। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।